الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ پاک ایک حکم دے رہے ہیں تمام کے تمام انسانوں کو کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو گناہ کا بدلہ ضرور ملے گا، عنقریب ملے گا۔ گناہ ظاہری وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اعضاء سے، جوارح سے، ہاتھ پیر سے، زبان سے، آنکھوں سے صادر ہوتے ہیں، جس کو لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں گناہ کرتے کرتے۔ اور باطنی گناہ وہ ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، برے خیالات ہیں، بدگمانی ہے۔ یہ سب باطنی گناہ ہے۔ اللہ پاک یہاں پر آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، اور جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو کرنے سے منع فرمایا ہے وہ شرعاً گناہ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کا گناہ ہونا خود آدمی کو اپنی عقل سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا۔ کوئی آدمی جو قرآن و سنت سے واقف نہ ہو بلکہ مسلمان بھی نہ ہو، وہ بھی کہے گا کہ بھئی جھوٹ بولنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ کہ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ دیکھو حضرت صالح کو ہم جو ہیں وہ رات کو قتل کر ڈالیں گے، اور رات کو قتل کر ڈالیں گے اندھیرے میں۔ اب چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، متعلقین، لہذا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا رات کو ہم ماریں گے اور اندھیرے میں ماریں گے، اور اندھیرے میں جا کر حضرت صالح کو ہماری پوری جماعت مارنے والی ہوگی کچھ آدمیوں کی، اور اندھیرے میں ماریں گے تو کس کے وار سے حضرت صالح فوت ہوئے، انتقال ہوا، قتل ہوئے، وہ کسی کو پتہ تو ہوگا نہیں کہ کس نے قتل کیا۔ اندھیرے میں کس کی مار سے مرے وہ تو پتہ ہی نہیں، تو رات کو اس طریقے سے قتل کرے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جب صبح کو جو ہے وہ پوچھیں گے تو ہم لوگ، یعنی جو قاتلین ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کے اندر سچے ہوں گے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، بھائی کس نے قتل کیا ہم نے دیکھا نہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور اس صورت کے اندر ہم پر جھوٹ کا الزام نہیں آئے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس صورت میں تم سچے کہے جاؤ گے، جھوٹ کا الزام تمہارے سر پر آئے گا نہیں کہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو گویا جھوٹ ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس زمانے کے کافر اور وہ کافر جو ایک نبی کے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، لیکن کہا کہ
कत्ल का गुनाह जो कर रहे हैं, लेकिन झूठ को जो है वो इतना भारी समझ रहे हैं कि भाई झूठा कहलाना ये तो पसंदीदा नहीं है, लिहाजा माशरे में हम झूठे कहलाएंगे तो हमारी क्या वक़्त और इज्जत और एहतराम रहेगा। खैर, इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि भाई झूठ कितना बड़ा गुनाह है, और सिर्फ ये नहीं कि कुरान और हदीस में इसकी वईद आई और उससे मना किया गया है, आम इंसानी मुआशरे के अंदर भी उसको बुरा समझा जाता है। तो कुछ तो गुनाह वो होते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, हर अक्लमंद आदमी उसको बुरा समझेगा, और बाद गुनाह वो होते हैं कि जिससे शरीयत ने रोका है, चाहे आदमी को उसका गुनाह होना समझ में न आए कि भाई ये क्या बात है, ये चीज कैसे गुनाह हो सकती है, लेकिन चूंकि अल्लाह पाक हमारे खालिक है और अल्लाह को पता है कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कौन सी चीज मुज़िर है, लिहाजा मुज़िर जितनी चीजें हैं उसको हराम करार दिया। हमें नुकसान देने वाले जितने अफ़ाल और किरदार हैं उन सब से मना फरमा दिया, और ये सब गुनाह के काम है। तो अल्लाह पाक यहाँ पर कह रहे हैं ज़रू ज़ाहिरल इस्म, ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो। ये गुनाह है बड़ी खतरनाक चीज, उसका असर जरूर होता है। एक गुनाह आदमी करता है, उसका असर उसके दुनिया में भी पड़ता है और आखिरत में भी पड़ता है। आखिरत के एतबार से भी वो नुकसान उठाता है। अल्लाह हमारे खालिक और मालिक है, लिहाजा कौन सी चीज हमारे लिए मुफीद है अल्लाह ने वो हलाल की, कौन सी चीज हमारे लिए मुज़िर है अल्लाह ने वो हराम की। लिहाजा अब यहाँ अक्ल के घोड़े दौड़ाए नहीं जाएंगे कि इंसान अपनी अक्ल से समझे कि ये बात कैसे नाजायज हो सकती है। मौलवी लोग तो कहते रहे, मौलवी लोग तो बोलते रहे, ये मौलवी लोग जो कहते हैं वो बोलते हैं, उनको कहने बोलने का शौक नहीं होता, वो अल्लाह के अहकाम बतलाते हैं कि भाई ये चीज गुनाह है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये छोड़ो। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि ये अल्लाह की नाफरमानी है। अगर कोई गुनाह होना और उसका नुकसान हमें अगर खुदा न खास्ता अक्ल पर पत्थरे पड़ने की वजह से अगर समझ में नहीं आता, तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये मेरे रब की नाफरमानी है। एक आदमी का अपना बेटा हो, अब दो बेटे के दोस्त तो अहबाब हो, अब बाप उसके साथ बड़ी शफकत और मेहरबानी का मामला करता है, दोस्त और अहबाब उसको कोई काम करवाना चाहते हैं, लेकिन मुती और फरमा बरदार बेटा सोचता है कि भाई मेरा वालिद, मेरा बाप, मेरा उसके ऊपर हक है, मैं उसके खिलाफ वर्जी करूंगा, ये अच्छा नहीं। अब उसके दोस्त और अहबाब उसको उस काम के फजाइल समझा रहे हैं, फायदे बतला रहे हैं, इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, लेकिन बाप से वो पूछने गया, बाप ने कहा बेटा आपने ये काम नहीं करना है। तो फर्मा बरदार बेटे के समझ में आए या ना आए, दोस्तों के सामने दोस्तों की हजार दलील होगी कि इसमें ये बेनिफिट है, ये फायदा है, ये इस किस्म के ये फजाइल है इसके अंदर। फर्मा बरदार बेटे का एक ही जवाब होगा, मेरे अब्बा जान ना कह रहे हैं। तो अगर दुनिया वाले अगर किसी गुनाह के काम को, शरीयत के काम को और शरीयत के खिलाफ काम को अगर बतलाएं कि इसमें ये बेनिफिट है, ये फायदा है, इसके ये फजाइल है, इसके अंदर ये तरक्की जो है वो होती है, एक बंदे का जवाब सबसे पहला और आखिरी यही होगा कि मेरा रब ने इससे मना फरमाया है। जब सूद हराम हुआ तो काफिरों ने एतराज किया, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि ये जो हम सौदा करते हैं, एक 10 रुपए की चीज हमने ली, अब उनको 12 के अंदर बेच रहे हैं। पूरी दुनिया में तिजारत का ये तरीका है। तो अगर हम किसी को 10 रुपये देकर, उधार देकर, अगर महीने के बाद 12 लेते हैं, तो ये भी तो इसी तरह हुआ, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि खरीदो फरोख्त में, सौदे में, तिजारत में भी यही होता है। तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या? अल्लाह पाक ने इसमें
جو بہترین جواب دیا، سب سے جو ہے ایک الزامی جواب دیا اور حقیقی جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ارے بے اور سود دونوں برابر تم کہہ رہے ہو، ایک بات تو یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، اس کو جائز قرار دیا ہے، اور حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیسا جواب ہے، ایک حاکمانہ جواب کہ بھائی یہ تو ہمارا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ بے حلال ہے اور سود حرام ہے، باقی اس کے جو نقصانات ہیں وہ آدمی سوچے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پوری اقتصاد کی بنیاد کو ڈھانے والی یہ چیز ہے۔ آج دنیا جو دیوالیہ پن کی شکار ہو رہی ہے، جو مہنگائی کے آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو وہ کہ پوری اقتصادی، پوری مالیت میں، پوری تجارت میں، بزنس میں اور ہر جگہ سود گھس گیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ سب ساری خرابیاں ہیں۔ تو ایک اللہ نے یہی بات احل اللہ البیع وحرم الربا، ہمارا آرڈر، ہمارا حکم، اس میں چوں چرا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو ذرو ظاہر الاسم و باطنا، اللہ نے یہاں پر نہ یوں کہا کہ بھائی جھوٹ کے یہ نقصانات ہیں، سود کے یہ نقصانات ہیں، اور اسی طریقے سے غیبت کے یہ نقصانات ہیں، اور نماز چھوڑنے کے یہ نقصانات ہیں، نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں۔ اللہ نے جو آرڈر دیے ہیں وہ فرائض ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اعتراف کا یہی مقصد ہے کہ جب کہہ دیا مومن ہو گئے، غلامی کا فنڈا ڈال دیا، اللہ کو معبود مان لیا، اب چلے گی اسی کی، میری اپنی جسم باڈی کے اوپر بھی، میرے گھرانے کے اوپر بھی، میرے معاشرے میں، میرے محلے کے اندر، ہر جگہ اسی کی جو ہے وہ چلے گی۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم صرف مسجد کے نمازی رہیں، وقت پر حج کر لیا کریں، روزے اور زکوٰۃ ادا کر لیا کریں، بس قصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، باقی ہمارے معاملات میں ہم جو جی چاہے کریں، معاشرت جس طریقے کی چاہے کھڑے کر دیں، جون سے رسوم اور رواج کو اپنے اندر لے آنا چاہے لے آئے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ ہم نے اللہ سے ایک طرف بندگی کا وعدہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزہ بنا 5 نمازوں میں کئی مرتبہ، 10 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ بندے سر خدا کے سامنے جھکایا جائے، عبادت کا مطلب اپنے آپ کو پورے اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بہت سے مفسرین کہتے ہیں لیعبدون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میری عبادت کرے، یعبدون کا مطلب ہے میرے بندے بن کر رہے، اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، خواہش کا بندہ، معاشرت جو ہے وہ کیا ہے، اور سماج کا بندہ، اور گھریلو جو ہے وہ رسوم اور رواج کا بندہ، یہ بندہ بن کر نہیں رہنا ہے۔ سال ہر سال سے جو ہے ہم یہ سب باتیں سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہاں کے علماء حضرت مولانا تقریباً 40 سال تک جو ہے اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر بولتے رہے۔ ہمارے یہاں سال میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکابر الحمدللہ تشریف لاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری کانوں پر پڑتی ہیں، لیکن بس وہی کہ بھائی بیٹھا سنا اور چلے گئے، عملی زندگی کے اندر اس کو ہم کب لائیں گے؟ ہم ایسا تو ہے نہیں کہ نعوذ باللہ نئے مسلمان ہیں تو چلو اب ان کو دین کے اوپر چلنا مشکل ہے، اب یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئی تہذیب کے اندر، اسلامی تہذیب کے اندر آئے ہیں، تو اب ان کی شادی بیاہ، ان کی منگنی، یہ تو جو ہے وہ ایک دم تو کیسے جو ہے وہ شریعت کے مطابق آ جائے گی۔ ہم تو ہمارے آباء و اجداد سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہمارے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان دعوت و تبلیغ میں نکلتے ہیں، علماء کی ایک جماعت ہر جگہ کام کر رہی ہے، بزرگان دین آ رہے ہیں، اور کس کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا ناجائز
नाजायज है, किसको पता नहीं कि झूठ बोलना नाजायज है, किसको पता नहीं कि शादी के अंदर रसूम और रिवाज की पाबंदी करना ये नाजायज है, किसको पता नहीं कि ये मंगनी की जो रसूमात हैं, खुराफात हैं, ये जो है खालिस गैर इस्लामी है। कुरान ने क्या ये कहा है कि भाई जितना तुमसे आसानी से हो सके उसके ऊपर अमल कर लो और तुम्हारा जो जी आए उसको जो है वो क्या है अमल कर लो। ये तो दीन पर चलने का मतलब नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मुसलमान होने का दावा किया है तो अब ये नहीं चलेगा कि खुदा की भी कुछ चले और मन की भी कुछ चले, रस्म रिवाज की भी कुछ चले, घर की औरतों की भी जो है वो कुछ चले, दामाद की भी कुछ चले, ससुराल की भी कुछ चले और कुछ खुदा और रसूल की भी चले। ये नहीं हो सकता। अल्लाह के यहाँ या तो कुफ्र है या ईमान है, या फरमाबरदारी है या नाफरमानी है। फरमाबरदारी की जगह जन्नत है, नाफरमानी की जगह दोज़ख है। इताअत और फरमाबरदारी, इताअत और बंदगी है, नाफरमानी ये बगावत है। अब हमें फैसला करना है कि अल्लाह का मुती बनकर रहना है या बागी बनकर रहना है, रब का बंदा बनकर रहना है, मन का बंदा बनकर रहना है। आखिर कौन हमें मजबूर करता है इसके ऊपर कि हम इन रसूम और रिवाज को न छोड़ें? कब वक्त आएगा? कितनी मुद्दत से हम बयानात सुन रहे हैं, कितनी मुद्दत से हम जानते हैं झूठ बोलना नाजायज है। कौन हमारे सर पर पिस्तौल लेकर खड़ा हो रहा है कि तू झूठ बोल वरना तेरी खैर नहीं? ये हमारे नौजवान और बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी रात तक बाजारों को, होटलों को, चौराहों को आबाद रखते हैं। क्या कोई शैतान या कोई दुश्मन पिस्तौल लेके खड़ा हो जाता है कि खबरदार जो तुम जल्दी सोए तो खैर नहीं? कौन रोकता है हमें? यही हमारी नफसानियत है, यही मनमानी है। यही मनमानी के ऊपर साल से हम चल रहे हैं और हमें देखकर हमारी नस्लें भी चलेगी। अगर आज बेदार नहीं हुए तो कब बेदार होंगे? आज फैसला नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कौन सा वक्त आएगा? क्या अज़ाब इलाही का हम नाउज़ बिल्लाह इंतजार करते हैं कि खुदा का अज़ाब सर पर आ गया तब जाके हम तौबा करेंगे, तब जाके हम सुधरेंगे? मैं आप पर इल्जाम डालूं, आप मुझ पर इल्जाम डालें, फलाना फलाने के ऊपर इल्जाम डालें, फलाना फलाने के ऊपर इल्जाम डालें, हर एक दूसरे को देख रहा है, अपना जायजा नहीं ले रहा है कि मैं किस बुराई के अंदर मुब्तला हूं। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम कोसते हैं दुश्मनाने इस्लाम को, हम कोसते हैं जो है वो यहूद और नसारा को, मुशरिकीन को। वाकईतन वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम फजर की नमाज के अंदर आए तो यहाँ कोई पहरा लगा हुआ है कि खबरदार नमाज के लिए उठे? तो क्या हम शादियों के अंदर रसूम और रिवाज को अदा न करें तो क्या ऐसी सूरत के अंदर हमारी शादियां नहीं होगी? याद रखिए, सबसे पहले हम अपने दुश्मन हैं। दूसरों को कोसने के बजाय ये पंच कुछ नहीं करती, ये उलमा कुछ नहीं करते, ये तबलीग वाले कुछ नहीं करते, ये फलाने कुछ नहीं करते। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जो पंच के करने के काम, जो उलमा के करने के काम, जो तबलीगी जमात करने के काम, जो काम वो करे ना करे, लेकिन मुझे जो काम करना है, मुझे झूठ से बचना है, मुझे रात को जल्दी सो जाना है, मुझे अपनी शादी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करना है, मुझे दीन पर चलना है, इसमें मेरे लिए कौन रुकावट बन रहा है? एक कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर कई मुलाजिमीन काम करते थे। तो आमतौर पर एक होता है ऐसा कि फलाना मुझे आगे नहीं आने देता, फलाना जो है मेरे आड़े आता है, फलाना मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। कंपनी के मैनेजर ने सारे जितने भी मुलाजिमीन थे, शाम के वक्त सबके नाम पर एक मैसेज छोड़ा कि आपका वो दुश्मन जो आपकी तरक्की में माने हैं, रुकावट बना हुआ है, उसका इंतकाल हो चुका है, वो मर गया। आपके लिए खुशी की बात है कि आपका वो दुश्मन जो आपकी तरक्की में आपके लिए रुकावट बन रहा था, उसका इंतकाल हो चुका है। अब और कल सुबह जो है उसकी डेड बॉडी हमारी कंपनी के फलाने कमरे के अंदर रखी हुई है।
आखिरी दीदार आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बहुत सौ को खुशी हुई कि चलो हमारा दुश्मन जो हमारी राह में रोड़ा बना हुआ था, हमारी तरक्की में आगे था, अब जो है वो हमारी तरक्की को जिसने अटका रखी थी वो मर गया। बहुत सौ को खुशी हुई और जो है सुबह में उसकी डेड बॉडी भी देखने मिलेगी। अब सब सुबह जो है वो क्या है, मुलाजिमीन गए कंपनी के अंदर और जिस रूम के अंदर डेड बॉडी रखी हुई थी तो देखने के लिए जा रहे हैं। अब बहुत से मारे खुशी के जा रहे हैं कि चलो हमारा दुश्मन जो था उसका इंतकाल हो चुका है, उसका आखिरी दीदार हो जाएगा और दिल को ठंडक पहुंचेगी कि इसका इंतकाल हो गया, ये मर गया। अब बारी बारी लोग अंदर जाना शुरू हुए, एक राह से जा रहे हैं, दूसरे राह से निकल रहे हैं। वो जो कॉफिन था, डेड बॉडी रखी हुई थी, उसमें जो है कोई नाशपाश नहीं थी, उसमें एक आईना रखा हुआ था, दर्पण अरीसा रखा हुआ था। जो भी गुजरता वहां से देखता उसको अपनी शक्ल नजर आती और बात समझ में आ गई कि मेरी अपनी तरक्की में अगर कोई हाइल है तो मैं सबसे पहले रुकावट बना हुआ हूं। लिहाजा एक दूसरे के सर के ऊपर थोपे बगैर हमें फैसला करना है कि हम अपनी जिंदगियों की तरक्की में खुद रुकावट बने हुए हैं। हमारे अफ़ाल और किरदार, हमारे अमाल ज़रूर ज़ाहिरन इसमें और बातिना, अल्लाह कह रहे हैं उसी को, ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। ये निकाह जो एक खालिस जो है वो क्या है, एक दीनी मामला, अगरचे एक मामला है लेकिन उसमें इबादत का पहलू गालिब है। उसको शुरू से लेकर जो है वो क्या है, आखिर तक हमने पता नहीं कितनी खराबियों का एक जो है मुजस्समा बना दिया है। मामूली सा सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने कितनी आसानी से करके गुजारा और हमारे असलाफ के नमूने उसके सामने मौजूद हैं और हमने आज उसको इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा जो है वो क्या है कर दिया है। हमारे खानदान के एक जिम्मेदार पिछले दिनों के अंदर बड़ी कुड़न से कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता लोग नऊज़ुबिल्लाह निकाह करना ही छोड़ दे। कितने खर्चे, कितनी रसूमात और नित नए जो है वो क्या है खर्चे, मंगनी से लेकर शादी की तारीख तय हो वहीं से खर्चे शुरू हो जाते हैं। वहीं से खर्चे ऐसे शुरू हो जाते हैं कि साल तक एक घर पनप सकता है, एक घर का खर्चा जो है वो पूरा हो सकता है। तारीख के तय करने के अंदर 10,000 15,000, फिर उसके बाद मंगनी की रस्म जो है वो होती है उसमें 50,000, खाना खिलाओ पिलाओ। अरे भाई खाना जिनको खिलाना है उनको खिलाए। अल्लाह के बहुत से बंदे भूखे हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमारे घर आए, आमतन हमारे यहाँ मेहमानी का रिवाज निकलता जा रहा है। जैसे हजरत ने भी कुछ दिनों पहले फरमाया था कि मेहमान की मेहमान खातिरदारी होनी चाहिए। रिश्तेदार जो हैं वो आए तो हमारे घर पर हाथ धोए बगैर जो है वो न जाए। रिश्तेदारों का आपस का ताल्लुक, आपस में एक दूसरे के साथ उठना बैठना, ये सब तो जो है वो निकला जा रहा है। करने की चीजें तो हम नहीं कर रहे हैं, बस दिखलावा जो है उसके ऊपर पहले अमल करना है। अब जाहिर है इतने ज्यादा खर्चे होंगे तो निकाह कितना मुश्किल हो जाएगा। गरीबों को अपनी लड़कियां जो हैं वो ब्याह मुश्किल हो रहा है, गरीब लड़कों को निकाह करना मुश्किल हुआ जा रहा है। और मैं कहा करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस आपने इरशाद फरमाया, आगमन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च, टेंशन, फिक्र, झमेले कम से कम हो, वो सबसे बाबरकत निकाह है। इसमें जो है अगर मालदार लोग पहल करेंगे तो गरीबों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि गरीब लोग कहेंगे फलाना इतना मालदार है फिर भी कितने आसानी के साथ निकाह किया, फलाना इतना मालदार है उसने लड़की का निकाह कितनी सादगी के साथ किया, तो फिर दूसरों को उस पर चलना आसान हो जाएगा। और हदीस में आता है मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहु व अजरु मन आमिल बिहा, जो आदमी अच्छा तरीका ईजाद करे,
तो जिसने अच्छा तरीका ईजाद किया उसको उसका भी बदला मिलेगा, और जिसने अमल किया उसको भी बदला मिलेगा। लेकिन नाऊज़ बिल्लाह हमारे यहाँ धीरे धीरे नए नए रिवाज आ रहे हैं पैसों की मस्ती में या देखा देखी के अंदर। वो अब जो है व्हाट्सएप के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, फलाने मुल्क की शादी, फलाने मुल्क की शादी, फलाने मुल्क की शादी। क्या व्हाट्सएप के ऊपर हम नहीं देखते हैं कि फलाने बुजुर्ग की नमाज, फलाने बुजुर्ग का रोजा, फलाने बुजुर्ग के घर की शादियां, ये भी तो हम देखते हैं। अमल करने के लिए सिर्फ क्या यही रह गया है? इसलिए इस पर अमल कीजिए। निकाह को इतना महंगा और इतना मुश्किल जो है वो मत बनाइए, इतना मुश्किल मत बनाइए। अब निकाह हो रहा है, बेचारे घर वाले परेशान परेशान, बेचारा दुल्हा मस्जिद में आएगा जुमा के दिन, उसका निकाह है, होना तो ये चाहिए अजान होने से पहले वो मस्जिद में आ जाए, लेकिन रसूम की पाबंदियों की वजह से वो या तो आएगा खुतबा खड़ा हो उस वक्त, या अल्लाह अकबर कहा जाएगा उस वक्त आएगा। और जो है वो क्या है, वो चूंकि जमेले हमने इतने खड़े कर दिए कि घर वाले फारिग ही नहीं हो रह सकते। हमारे पड़ोस में गोजरा में देख लीजिए कि माशाअल्लाह जुमा की नमाज अव्वल वक्त में, हर जगह अव्वल वक्त के अंदर होती है। हमारे यहाँ जुमा शुरू सारी मस्जिदों के अंदर उलमाए किराम के मशवरे से 1-10 को हुआ, बाद मुजाहिदीन ने अभियान खड़ा किया उसके लिए कि भाई ये जुमा की नमाज लेट होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पता नहीं कौन से मशगले होते हैं, कौन सी कंपनियां जो है अडानी अंबानी जैसी चलती है कि वो 20 मिनट मस्जिद के अंदर जल्दी नहीं आ सकते। और इस अभियान उनका चला और कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई ऐसा अभियान हमारे रसूम और रिवाज को मिटाने के लिए उन नौजवानों ने खड़ा किया होता, क्या ही अच्छा होता। वहां देखिए आप कि दुल्हा जो है आमतन निकाह जो है खुतबे से पहले हो जाता है, खुद पहले निकाह फिर खुतबा हो जाता है। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात सुनाऊं आपको कि हमारे एक मुताल्लिक ने कहा कि भाई गोजरा के एक साथी ने कहा कि ये जो हमारे लड़के, 2 लड़कियों की एक लड़की की शादी है, इसके निकाह में तो हम आपको बुला नहीं सकते। भाई क्यों? तो कि वो इस वजह से कि उनका निकाह फजर के वक्त है, तो आप इतनी दूर से कहां से आएंगे? फजर के वक्त में भी वहां निकाह होते हैं, और यहाँ जोहर के वक्त, असर के वक्त निकाह होते हैं, और दूल्हा सबसे आखिर में आ रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, जो नौजवान मुस्तकबिल में निकाह करने वाले, उनसे मेरी दरखास्त है कि निकाह करने से पहले जरा सारा किसी उलमा से मशवरा करें कि मैं किस तरीके में कौन सी किताब पढ़ूं। ये तोहफा दुल्हन है, तोहफा दुल्हा है, लड़की को तोहफा दुल्हन पढ़ानी चाहिए, लड़के को तोहफा दुल्हा पढ़ानी चाहिए। पता चले एक दूसरे के हुकूक क्या है, ताकि उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी सही तौर के ऊपर गुजरे। आमतन 2 महीने पहले सारी तैयारियां होती हैं, सारे लिस्ट बनते हैं, लेकिन न दुल्हन को पता होता है कि मेरे ऊपर अपने होने वाले शौहर के क्या हक हैं, न दुल्हा को पता होता है कि मेरे ऊपर मेरे आने वाली दुल्हन का क्या हक है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत पढ़ना।